जी Right, so basically we are doing math reasoning. ठीक है, आज math reasoning का दिन है and basically well usually Monday to Friday classes होती हैं, लेकिन since we missed a few days so इसे backup classes Sunday और Saturday को रख रहे हैं. ठीक है, अभी this is a textbook which I've sent the PDF on the group. Okay, you can get it from there. It's acing the new SAT math. All right, and इसमें we have to do almost all the chapters. Before you joined this class, we've done all the past papers of math reasoning. All right, so if you need those recordings, then I'll tell you the details how to get them. All right, later on. Now let's get started now. The language and tools of algebra is the first chapter that we need to do, variables and expressions. So we're going to do the questions, but before the question I'm going to just briefly go over the notes which are over here. In algebra, variables and symbols used to represent the unspecified numbers or values. All right, so variables are the symbols which are used to represent those numbers which are not given. All right, for example, आपसे कोई चीज पूछ लें, if someone asks you, okay, we have two men, all right, who need, let's say, 10 cakes to eat, right? Okay, so if I have, let's say, 10 men, how many cakes would be required? All right, now I assume this is x. This x that I have used over here, this is a symbol, and this symbol is called a variable. All right, then we can cross multiply and then solve it. For addition, a specific terminology is used: sum, more, increased. These are three terms which are usually used. Okay, but आपको कोई कहे कि the sum of 20 and n, so it's going to be 20 plus n. All right, sum means plus. 9 more than twice of a. Twice means 2 times of a. All right, 9 more. More means again plus. 9 plus. So 2 times of a plus 9. A is a variable. Similarly, the number m increased by 12. So m plus 12. This is for addition. The terminology used for subtraction is difference, less, decreased, and minus. These are the 4 terms used to represent subtraction. Right, and these are the terms that you'll see on the questions as well, which we'll be doing in a bit. So the difference between the number x and 7, so this means x minus 7, and 3 less than a number b, 3 less than a number b. Okay, this is not a, this is just okay, this is not a variable. This sentence mein likha hua hai. B is the variable. So 3 less than b means b minus 3. 3 times the number k decreased by 5. So 3 times the number k ka matlab 3 times of k decreased by the number of 5 means minus 5. And minus 9 minus n means 9 minus n. Ye to simple hai, right? And multiplication means iske terms times use kiya jata hai ya product use kiya jata hai. 2/3 अगर बोला जाए या 1/5 बोला जाए या कुछ भी इस टाइप का वर्ड बोला जाए, तो इट मीन्स इट्स बीइंग मल्टीप्लाइड. ठीक है, 2/3 का मतलब 2/3. इस तरह से 1/5 का मतलब 1/5. इस तरह से 2/3 का मतलब 2/3 हो गया, तो 1/3 का मतलब 1/3, हाफ का मतलब 1/2 एंड सो ऑन. ठीक है, ऑफ x. n which is divided by 8. n divided by 8, this is for division, so n/8 हो जाएगा. ठीक है, the quotient of 15 and d. quotient का मतलब होता है जो आंसर आ जाए आपके पास. 15 upon d मतलब 15 is being divided by d. All right, this will give you an answer, the quotient. quotient जो है वो आप डिवीजन में भी यूज करते हैं. ठीक है, डिवीजन में अगर आपको किसी नंबर को डिवाइड करना होता है, फॉर एग्जांपल 4 यहाँ लिखा है, 2 बाहर लिखा हुआ है. ठीक है, मतलब आप 4/2 निकालना चाह रहे हैं, तो 4 को अंदर लिखते हैं, 2 को बाहर लिखते हैं. यहाँ ये जो ऊपर जो नंबर लिखते हैं ना, इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं quotient. ठीक है, so the quotient of 15 and number d डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, क्वोशिएंट इस नंबर को भी कहते हैं. ठीक है, और इस तरह से डिवीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. Write an algebraic expression for each verbal expression.
ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है एंड यू आर आस्क्ड टू मेक एन इक्वेशन आउट ऑफ इट। सो 10 लेस देन 1/5 ऑफ क्यूब ऑफ p, if you try making an equation out of this sentence, 10 लेस का मतलब होगा -10 करना है, 1/4 का मतलब 1/4, 1/4 टाइम्स 1/4 बोला है ना, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ p, क्यूब ऑफ p, क्यूब का मतलब होता है p क्यूब, राइट, p to the power of 3, एंड 10 लेस देन दिस का मतलब कि दिस नंबर -10। इसकी एक्सप्रेशन बन गई है, देख लेते हैं इसको। सी यही नंबर है 1/4 p cube -10. Then part B says twice the difference between x and 16. Twice the difference between x and 16 मतलब पहले तो आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन x and 16 कितना है, x - 16 कर लेते हैं, और ट्वाइस दिस नंबर का मतलब होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। अच्छा, वैसे डिफरेंस का एक और मतलब भी हो सकता है, डिफरेंस का मतलब 16 - x भी हो सकता है। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट नंबर्स बट बोथ ऑफ देम मीन डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबल एक्सप्रेशंस बन सकती है। हाउएवर इन्होंने सिर्फ ये वाली दी हुई है शायद, हाँ यही वाली दी हुई है तरफ, दूसरी वाली नहीं दी। 4 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 3, 4 टाइम्स का मतलब 4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड एंड सम का मतलब होता है प्लस कर रहे हो एक नंबर को और 3 को, तो एक नंबर, हम उस नंबर को x अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जिस नंबर की बात कर रहे हैं, और फिर सम है उस नंबर का और 3 का, और उस पूरे सम को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 4 से, एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। ठीक है, हमने x अज्यूम किया, उन्होंने n अज्यूम कर लिया, बात एक ही। और फिर लास्ट वाला कह रहे हैं कि 4 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 3, 4 टाइम्स अ नंबर का मतलब 4 टाइम्स ऑफ n, राइट, 4 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, इंक्रीज बाय 3 का मतलब इसमें आप क्या ऐड कर दो, 3, 4n + 3। सो आर ऑल द 4 एक्सप्रेशंस क्लियर अहमद, इस चारों समझ में आ गई कैसे बनी? यस ब्रदर। ठीक है, आगे चलते हैं। और दिस वाज वेरी बेसिक, राइट, अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चले गए। एग्जांपल 2, Mr. and Mrs. Sawyer are taking their 3 children, ठीक है, 3 children है, to an amusement park. The admission is $8 per adult and $6 per children, and the cost of each ride is $R per person. All right. So adults की cost होगी A, children, each children का cost होगी C, and चाहे children और adults में से कोई भी ride करे, per ride cost होगी R. Write an expression for the cost of admission plus 10 rides for the family. ठीक है, अब देखें, we've got 2 adults in here, right? Adults दो कौन कौन है भाई, मिस्टर और मिसेस सॉयर हैं, फिर 3 चिल्ड्रन हैं। एडमिशन की टिकट्स होगी ए और सी, और फिर राइड की टिकट होगी आर पर पर्सन। ठीक है, और कितनी राइड्स है भाई, 10 राइड्स है। ये सारी चीज़ों को एक साथ अब हमें कंबाइन करना है। सो 2 एडल्ट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, राइट, 2 एडल्ट्स की कॉस्ट यही होगी, इसमें आप ऐड कर दो 3 चिल्ड्रन की कॉस्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय सी हो जाएगी, राइट, क्योंकि एक की सी है तो 3 की 3C होगी। इसमें आप ऐड कर दो आप कॉस्ट ऑफ 10 राइड्स, राइट, 10 राइड्स की हमें कॉस्ट करनी है ऐड, लेकिन 10 राइड्स को ऐड करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक राइड की कॉस्ट कितनी होगी। $8 तो है, वो एक बंदे की है, राइट, बट ये 5 लोगों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी एक राइड की, 5 मल्टीप्लाइड बाय R, राइट, क्योंकि चाहे चाइल्ड हो या एडल्ट हो, कॉस्ट तो R ही है, राइट, तो टोटल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स 5 हैं इस फैमिली में, तो 5R इज द कॉस्ट ऑफ 1 राइड। ठीक है, और कितनी राइड्स की हमें निकालनी है, 10 राइड्स की, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन आ गई है, दिस इज योर आंसर, 2A + 3C + 50R। दिस इज द एक्सप्रेशन, ऑप्शन ए, 2A + 3C + 10R। ठीक है, 10R, 10R क्यों, एक सेकेंड, 10 rides for the family, write down expression plus $R per person. The cost of each ride is $R per person. तो पर पर्सन अगर $R है और पूरी फैमिली की उन्होंने पूछी हुई है और पूरी फैमिली में 5 बंदे हैं,
तो ये 5 से ये लोग मल्टीप्लाई करना भूल गए यहाँ पर, ये 10R गलत लिखा है, 50R है, ठीक है, यहाँ पर 10R की जगह दिस इज 50R, क्योंकि इन्होंने आपसे पूछी पूरी फैमिली की बताएं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने R जो गिवन है दिस इज पर पर्सन और 5 पीपल आर देयर, ठीक है, तो ये 50R है, ये 10R नहीं है। The part B says find the cost of admission plus 10 rides if the admission per adult is $20 and admission per children is $12 and the cost of each ride is $8. Okay, so cost of admission ये हो गई, plus 10 rides for the family, मतलब जो हमने एक्सप्रेशन बनाई थी उसी को लेकर चलेंगे, लेकिन इन्होंने इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से नेक्स्ट पार्ट का आंसर निकाला होगा। If the admission per adult is $20, तो ए की जगह हम क्या डाल लेंगे 20 times admission per child is $12, cost of each ride is $8, ये देखें cost of each ride is $8, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक पूरी राइड की कॉस्ट दी हुई है, एक पर्सन की कॉस्ट नहीं दी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 50 की जगह आप क्या डाल सकते हैं 10, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको पूरी राइड दे दी है, पर पर्सन की कॉस्ट नहीं दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, पूरे राइड की कॉस्ट दी हुई है, तो पूरे राइड के हिसाब से तो 10R बनेगा, राइट, 10 राइड्स की 10 राइड्स मल्टीप्लाइड बाय R, और R की जगह हमें क्या डालना है $8, क्योंकि ईच राइड की कॉस्ट कितनी है भाई $8 है, ठीक है। इसमें पर पर्सन वाला सीन इन्होंने नहीं किया पार्ट बी में, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा। नाउ जस्ट एड इट अप एंड इट विल गिव यू 40 प्लस 36 प्लस 80, so 120 and 156 आ जाएगा। लेट्स सी इफ दिस इज करेक्ट, या दैट्स द आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इन्होंने यहाँ ए की वर्डिंग जो है ना, इस वर्डिंग के हिसाब से फॉर द फैमिली बोला हुआ है एंड $R पर पर्सन बोला हुआ है, तो इसलिए इनका आंसर ये 50R होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन पार्ट बी में उन्होंने वर्डिंग करेक्ट कर दी, ईच राइड पूरे राइड की आपको कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, तो इसलिए फिर वो सिर्फ R होगा यहाँ पर पर्सन का हिसाब नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो 10 राइड्स की कॉस्ट होगी। तो ये बात समझ आ गई, एग्जाम्पल 2 समझ आ गया अहमद? जी भाई समझ आ गया। राइट, आगे चलते हैं देन। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज, ठीक है, वी नीड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज ही है और ये बिल्कुल एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चंस है, ठीक है। एसएटी मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम के क्वेश्चन से काफी मैच करते हैं, ठीक है। सो लेट्स ट्राई सॉल्विंग देम नाउ। Twice the product of m and n decreased by the square of the sum of m and n, which of the following is an expression of the statement above? अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि twice का मतलब 2 times, ठीक है, 2 times product of m and n, m and n का प्रोडक्ट क्या होगा, m मल्टीप्लाइड बाय n, राइट, और उनको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, twice the product of m and n, m twice the product of m and n decreased by the square of the sum of m and n. Twice the product of m and n decreased by the square of the sum of m and n, तब m and n का जो सम होगा उसके स्क्वायर से डिक्रीज कर दिया, 2 times mn, ठीक है, 2mn decreased by the square, by का मतलब स्क्वायर जो है वो बाद में आएगा, square of m plus n, so 2mn minus m plus n the whole thing squared, ठीक है। तो ये रहा आंसर हमारे पास आ चुका है, 2mn minus m plus n the whole thing squared। तो देख लेते हैं, आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं आंसर चेक कर लूं।
ठीक है, ये बी आंसर। तो ये एक्सप्रेशन समझ आ गई आपको, 2mn माइनस एम प्लस एन और एम प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है, टू जी एम एन समझ आ गई। माइनस कर देना है। ठीक है, अगर कोई चीज समझ नहीं आती ना तो आप मुझे उस वक्त रोक कर पूछ लें। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर x and 4 decreased by 12. Which of the following is an expression for this statement? Product of a number x and 4 decreased by 12. तो प्रोडक्ट ऑफ x को आपने मल्टीप्लाई करना है एंड 4 डिक्रीज बाय 12। क्या मतलब? प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड x, ठीक है, डिक्रीज बाय 12, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4x माइनस 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वोशंट ऑफ 19 एंड डी इंक्रीज बाय 7। क्वोशंट का मैंने बताया था, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या मतलब था कि 19 डिवाइडेड बाय डी। क्वोशंट का मतलब होता है डिवीजन। क्वोशंट ऑफ 19 एंड डी, ठीक है, इनका मतलब जो आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, आप 19 को डी से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आपके पास वही आता है ना जो यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। अगर आप 19 अंदर लिखते हो, डी बाहर लिखते हो, तो यहाँ पर ये यही जो आंसर आता है, यही आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, राइट। तो क्वोशंट ऑफ 19 एंड डी मतलब 19 अपॉन डी। ठीक है, सो 19 अपॉन डी इंक्रीज बाय 7। इंक्रीज बाय 7 मतलब प्लस 7, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 4। Mario received Y text messages each minute for 10 minutes. ठीक है, मारियो ने कितने मैसेजेस रिसीव किए भाई? Y मैसेजेस हर एक मिनट में। तो 10 मिनट्स में उसने कितने रिसीव किए होंगे? 10Y, राइट। एंड रिसीव T टेक्स्ट मैसेजेस ईच मिनट फॉर 20 मिनट्स टुडे। और आज कितने रिसीव किए भाई? हर मिनट में T टेक्स्ट, सो 20 मिनट्स में 20T। ठीक है, ये टुडे वाले, हाँ, ये यस्टरडे वाले। What is the total number of texts he received for the 2 days in terms of y and t? मतलब इन दोनों का सम, टोटल इन दोनों का सम ही होगा, राइट। सो 10y प्लस 20t, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन 5। Which of the following expressions represent the product of 3k and the sum of m and 1/3 of n? अच्छा भाई, तो 3k है आपके पास, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं सम ऑफ m एंड 1/3 ऑफ n। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस? मतलब आपने m और n 1/3 ऑफ n को पहले सम कर देना है, ऐड कर देना है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है किससे भाई? 3k से। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट्स में उनको बन गया है। ठीक है, तो m प्लस 1/3 ऑफ n into 3k, so option C। Difference between two numbers is 8. If the smaller number is n to the third power, what is the greater number? Okay, so difference between two numbers is 8। ठीक है, दो नंबर्स हैं आपके पास और उनमें से एक स्मॉलर नंबर जो है वो है n टू द थर्ड पावर, मतलब n टू द पावर ऑफ 3। तो पूछ रहे हैं कि बिगर नंबर क्या होगा? जो बिगर नंबर होगा उसको आप पहले लिखते हैं हमेशा। बिगर नंबर को हम x अज्यूम कर लेते हैं। सो x माइनस एन क्यूब जो है, उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है ना, डिफरेंस में जो बिगर होता है वो पहले लिखा जाता है और स्मॉलर होता है वो बाद में लिखा जाता है। इट इज इक्वल टू 8, ये भी बोला हुआ है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 8 एंड द स्मॉलर नंबर इज n टू द पावर ऑफ 3। तो बताओ बिगर नंबर x की वैल्यू क्या होगी? 8 प्लस n टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, n माइनस एन क्यूब को उधर भेजेंगे तो प्लस n क्यूब हो जाएगा। सो ऑप्शन बी। ठीक है, इज दिस क्लियर? 6 के 6 क्वेश्चंस क्लियर हो गए? जी। राइट, द नेक्स्ट, एक्सपोनेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। एक्सपोनेंट्स का पता है ना, पावर को कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, ये इंडाइसेस की बेसिकली बात हो रही है। एंड इसकी नॉलेज तो आपको होगी कि आप अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 + 1 जो कि 2 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब, तो आंसर क्या होगा? a टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इस तरह से।
To evaluate an expression of more than one expression operation, we agree to the following. Order दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है. Simplify the expression inside the grouping symbols such as parentheses, brackets and fraction bars. ठीक है, अगर आपको ये दिया हुआ है 2 cube the power of 2, ठीक है, तो पहले ये parentheses को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, पहले तो अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे अगर अंदर सॉल्व करने की जरूरत होती है तो, और फिर ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 to the power 6 हो जाएगा. ठीक है. Evaluate all powers, सारे powers को देखना है. ठीक है. Do all multiplications and divisions in orders from left to right, and then do all addition subtraction in order from left to right. ठीक है. अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, राइट साइड पे एंड कर लो. एग्जांपल 1 दी हुई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं. भाई 11 माइनस, अच्छा ये बॉड मास दिया हुआ है आपको सिंपल. ठीक है. 11 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 13 अपॉन 3 प्लस 8 ब्रैकेट्स के बाद फिर 2. अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ना सारी, इसको पहले सॉल्व करेंगे हम. ठीक है. यही यहाँ पर भी किया हुआ है इन्होंने. क्या किया है? 5 स्क्वायर. ठीक है. 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25. ठीक है. 25 माइनस 13 अपॉन 3, और फिर यहाँ डिवीजन का था साइन है, 20 है, माइनस है और 11 है. ठीक है. पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं. ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? डिमास रूल, बोर्ड मास रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह. ठीक है. अब यहाँ देखें, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ होता है ना, इस फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना होता है हमेशा. 25 माइनस 13 क्या आ जाएगा आंसर? भाई यहाँ पर 2 है और ये 1 है, 12/3 हो जाएगा. 12/3 का मतलब 4. ठीक है. 3 4 12 होता है, राइट. 20 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 11 अपनी जगह और प्लस अपनी जगह 8. ठीक है. अब क्या करेंगे? आप डिवीजन वालों को पहले सॉल्व करेंगे. मतलब माइनस 20/4 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 11 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4 एंड देन प्लस 8. तो 4 5 से 20 होता है, राइट. अब होगा 11 प्लस 8 माइनस 5. ठीक है. तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5. ठीक है. यानी 14. अब ये जो 14 है ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर भी कुछ था. यस, 2 था. ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 28. ठीक है. यही चीज यहाँ भी की हुई है. ठीक है. पार्ट बी, अब ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन टेस्ट होते हैं. ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट्स क्लोज्ड. If a equals 4, b equals minus 3 and c equals 7, solve this. तो यहाँ अजान हो रही है, सर 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है. Okay, so evaluate a cube minus b squared plus c over a plus ab plus c, and then this is in brackets. So the brackets need to be solved first, and this fraction needs to be solved first. Okay, so now it says b squared, and b is minus 3 actually. So minus 3 plus squared plus c is 7 divided by a is 4, and then there's a negative sign over here, and then there's a cube, which is 4 cube actually, and then there is plus sign, and then there's ab, meaning 4 multiplied by minus 3, and then plus c, which is 7. Okay, now simplify it. 3 squared is 9 plus 7 is 16 upon 4, which is 4. Take it. This is just 4 minus 4 cube. 4 4s are 16 and 16 4s are 64, right? And then 4 3s are 12, negative 12 plus 7 is minus 5, right? So 64 minus 4 minus 5. So it's 60 and then 55. This should be the answer. And yes, this is the answer. Okay. I've simply just plugged in the values. You just have to be careful about solving the brackets and the fractions first. Right. Now we have some more practice questions here. Right, so let's solve the bracket first and then divide it and then multiply it by this 2. So 7 squared is 49 minus 9 divided by 8. Brackets divided by multiplied by 2. So it's 40 upon 8 is 5 multiplied by 2 is 10. Okay. Now question 2 says let's solve this fraction. 4 2s are 8. Take care, and 2 is being multiplied by this entire thing. 2 to the power 4 is 16 minus 7 is 11, 9, right? Minus 9 multiplied by 2. And there's a 20 here. Okay. The bracket which is not here.
do this again. 2 to the power 4 is 16 minus 7 upon 4. Okay, there's a negative sign out here. Multiplied by 8, so 4 2s are 8. Okay, 16 minus 7 is 9. 9 2s are 18. So 20 minus 18 multiplied by 3, and then 19 minus this number. So this is 2, 2 3s are 6, and 19 minus 6 is 13. Right? Let's check the answers as well side by side. ठीक है, 8 था ना first वाला? Yes, ठीक है. Now question 3. Again, you need to divide first and then multiply. ठीक है? 3 squared is 9. 72 divided by 9 is 8. 9 8s are 72, right? Multiplied by 2. This dot means multiplied and divide by 6. And so 2 3s are 6. 8 over 3. ठीक है? Is the answer. If you write it down in mixed number, it's going to be 2 whole number, 2 upon 3. Do you know how to write this down? How to convert this into this one, fractions? Ahmed? Yes, brother. Do you know this conversion? 8 over 3. Please this explain me this conversion. Explain करूं? जी. देखो, अच्छा देखो इसमें ये सीन होता है ना, 8 अंदर लिखते हो आप, 3 बाहर लिखते हो, तो 3 2s are 6 होता है, राइट? 8 तो नहीं आता 3 के टेबल में, 2 बच गया. Okay. तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो ऊपर नंबर आया है ना, ऊपर वाला ये कोएफिशिएंट, इसको लिख देंगे एज अ होल. फिर जो बचा है, रिमाइंडर है, वो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो यहाँ पर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर बन जाएगा. ठीक है? Okay. और अगर इसको आप वापस से इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाना चाह रहे हो, तो इस 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई और 2 से प्लस कर दोगे. तो 2 3s are 6 प्लस 2 is 8, राइट? तो 8 और डिनोमिनेटर यही रहेगा 3. सही है? तो 8 upon 3 वापस से आ गया. बट इस मिक्स नंबर में भी आपसे पूछा जाता है. ठीक है? Okay, bro. Now question 4. Again bracket, but again divide, Demas rule, board mass rule. Remember? Do you know what board mass rule is? Bracket of division, multiplication, addition, subtraction. तो bracket को पहले solve करना है, फिर open करना है, फिर division, फिर multiplication, addition और subtraction करनी है. ठीक है? So 12 divided by 3 is 4, plus 12 is 16, right? Negative of half, and यहाँ पर 5 cube भी है. 12 plus 4 is 16 upon 2 is 8. ठीक है? 16 upon 2 हो जाएगा. Negative sign अपनी जगह. 5 cube का मतलब होता है 125. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 होता है, right? 5 cube, which is 125. This is 8. 125 minus 8 is 117. ठीक है? बगैर कैलकुलेटर के सारा कुछ हो रहा है. ठीक है? कैलकुलेटर के साथ सॉल्व नहीं करना, because calculator is not allowed. Question 5 now. What is the value of 2c the whole upon a the whole thing squared minus 10 into b plus a upon c when all of these are given? बस इनको उठा के बस इसमें डालना है. ठीक है? तो अब इसमें करना क्या है कि ये b plus a दिया हुआ है ना, तो b होता है 3, a है -2, तो -2 यहाँ पर लिख लेंगे. ठीक है? प्लस माइनस वैसे ही माइनस हो जाना है, और डिवाइड में आपने 5 डाल देना है. ये दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय -10. सही है? अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन जब यहाँ लगा होता है, इसका मतलब ये कि ये इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है? ये 10. अच्छा, फिर उसके बाद तो ये 5 2s are 10 हो जाएगा. सही है? मल्टीप्लिकेशन को तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं. और फिर ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन a विच इज -2. ठीक है? और ये पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा. ठीक है? और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा. फिर 2 अपनी जगह आ जाएगा, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 3 minus 2 तो 1 हो जाता है. 25 में से 2 निकालेंगे तो 23 बच जाएगा. Question 6 now. What is the value of 9 minus 2x divided by z minus y the whole thing cube if all of these are given? Again same cheese. ठीक है? 9 minus 2 into 4 divided by z which is -3 minus -1 which is y. ठीक है? And then bracket के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्यूब लगा हुआ है. तो open the bracket first, solve the bracket first. -3 plus 1 is -2,
-2 का आप क्यूब लेंगे, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर से, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। 2 क्यूब जो होता है ये -8 होता है, -2 का अगर क्यूब लेंगे, ठीक है। -8 और ये 2 4 जा क्या होता है 8, -8 ही होता है ये भी, ठीक है। और 9 अपनी जगह पर ही है। अब बीच में डिवीजन का साइन आ गया है, तो -8 को -8 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 9 -8 अपॉन -8, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 हो जाएगा विच इज 10। Question 7 now. What is the value of this thing when all of this is given? Again सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन ये देखें बीच में डॉट लगा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट्स हैं, सही है। इसको भी ओपन कर लेते हैं इसी Okay. तरह से। तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय क्यू का स्क्वायर, मतलब होता है 1/2 दिया हुआ है क्यू, राइट। 1/2 का स्क्वायर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय p, ठीक है। ये पूरी ब्रैकेट है, और इस तरफ जो ब्रैकेट है ये है माइनस, और फिर p की वैल्यू डाल देंगे, फिर +6 टाइम्स q की वैल्यू डाल देंगे विच इज हाफ, माइनस r की वैल्यू डाल देंगे डिवाइडेड बाय नेगेटिव, और q की वैल्यू हो जाएगी हाफ, वही सही है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 1/4 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। कि डिवीजन को आप चेंज कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट करेंगे आप, ठीक है। 3 रूल्स ऑफ डिवीजन होते हैं ना यहाँ पर। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या होगा, 7 4 जा 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। नाउ सिंप्लीफाई हो सकता है ये फर्दर, 2 4 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28। तो ये 7 आ गया इस तरफ, इस ब्रैकेट का आंसर तो 7 है। इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, -4 -2 -6 और फिर +3 -3 आ जाएगा, सही है। -3 डिवाइडेड बाय -हाफ। अच्छा ये -1/2 है ना, तो ये 2 पर चला जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, एंड 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 आ गया आंसर आपके पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 8 उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c minus 2 into a plus b divided by c minus a the whole thing squared if a equals this, b equals this, c equals this, ठीक है। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c की जगह आप डालेंगे 5/2 -2 इंटू a प्लस b, a की वैल्यू है -1/2, b की वैल्यू है 3/2, एंड इस पूरी चीज को आप डिवाइड कर रहे हैं c माइनस a से। जब c की वैल्यू है 5/2 माइनस a की वैल्यू है -1/2, राइट। -1/2 को यहाँ लिख देंगे, और फिर इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। अच्छा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो पावर्स तो न्यूमिनेटर्स बस ऐड हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 3 - 1 जो है वो 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 2 1 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फ्रैक्शन को अगर मैं अलग से सॉल्व करूँ तो 5/2 -2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन अपनी जगह है, और ये पूरा फ्रैक्शन जो ऊपर वाला है, जो ये न्यूमिनेटर अपनी जगह, ये जो डिनोमिनेटर इसको सिंप्लीफाई करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 + 1/2 मतलब 6/2, ठीक है। 5/2 + 1/2, ठीक है, जिसका मतलब होगा डिनोमिनेटर्स आर द सेम, तो 6/2, 6/2 का स्क्वायर मतलब ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 9, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब डिवाइड के इस तरफ 9 लगा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके फिर 9 से डिवाइड कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा ये एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। 5 - 4 डिवाइडेड बाय 9, 5 - 4 का मतलब होता है 1/2, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 9 है। 3 रूल्स ऑफ डिवीजन फॉलो कर लेते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1/9 हो जाएगा, जो कि 1/18 आंसर दे रहा है आपको, ठीक है। 3 रूल्स ऑफ डिवीजन ये होते हैं कि आप पहले नंबर को एज इट इज कॉपी कर लेते हो, डिवीजन साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हो,
और जो थर्ड नंबर है ना उसको आप रेसिप्रोकेट कर लेते हो, मतलब 1/, की फॉर्म में ले आते हो। 1/18 इसका आंसर है लास्ट वाले का। यस, यही आंसर। बताएं यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर एट, है। एट समझ आया? यस ब्रदर। ठीक है, गुड। तो अब यहाँ पर बस क्लास को फिर एंड कर लेते हैं, ठीक है? 2 एक्सरसाइजेस कर ली हैं, आगे वाली क्लासेस में हम और बाकी जो बचा है इसका वो कर लेंगे, ठीक है? पास्ट पेपर्स हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम टॉपिकल बस चल रहे हैं जहाँ तक हो सके, ठीक है? ये पीडीएफ में ऑलरेडी भेज चुका हूँ ग्रुप पे, तो ये आप स्टडी कर लीजिएगा खुद से भी, ठीक है? चले, ऑलराइट देन।